Good morning, student. In the previous classes, we have discussed about the Arrhenius theory of ionization, then limitation of the Arrhenius theory, and also the part have discussed of the Debye-Hückel theory. And this in Debye-Hückel theory, two effect. One electrophoretic effect, and second is the asymmetric effect. Okay, so this asymmetric effect already we have discussed in a previous class. Today we will discuss about the electrophoretic effect. So what is mean by the electrophoretic effect? Like the asymmetric effect, here is also the when the positive ion or negative ion, okay, positive ion or negative ion surrounded by the solvent molecules, it is called as the solvation of ion. तो इसको क्या बोलेंगे हम? Solvation of ion. So if we take the example NaCl, okay, NaCl and the solvent, if we take the solvent water, okay, so these water molecules surrounded with the positive means Na plus ion or Cl minus ions. Okay, if this solvation of ions, it is called as the solvation of ion. If we apply the electric field, then this positive ion move toward the opposite electrode along with the solution sphere. Okay, but these solvation sphere, these solvent molecules, like जैसे कि सिमेट्रिक इफेक्ट में जैसे देखा गया है कि जब वो पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास क्या हो जाता है, मूव होता है, माइग्रेट होने की कोशिश करता है, तो ये जैसे अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अपोजिट चार्ज आयन इन बैक साइड में होते हैं, वैसे ही टाइप का जब अलॉन्ग विद दिस आयन जब ये मूव टूवर्ड ये करेंगे तो ये भी H2O जो मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या होंगे, ये भी इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, काउंटर करेंगे. तो इसके कारण ये क्या होगा, इसकी जो स्पीड है पॉजिटिव आयन की और निगेटिव आयन, या हम अभी यहाँ पे पॉजिटिव आयन समझ में आया, तो ये जो डायरेक्ट इसकी जो स्पीड है ये इनके कारण क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ओके, तो इफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जब डाइल्यूटेड करते हो, डाइल्यूशन बढ़ता है तो क्या हो जाता है, फिर डाइल्यूशन करते हो तो ये जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और उसके कारण क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, ये जैसे इसका डिस्टेंस ऐसे इंक्रीज हो जाता है, एकदम से इंक्रीज होता है, और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट टू ईच अदर एंड देयरफॉर डिक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड हियर व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस therefore obstruction decreases and conductance increases. Obstruction decreases and conductance increases. Okay, so like this. Okay, तो ये है, this effect is called as the electrophoretic effect. Okay, like the asymmetric effect, only difference is here is the surrounded by the ion, opposite ion, but only here electrophoretic effect is surrounded by the solvent molecules. Okay, also third effect, also the effect on the conductance of the strong electrolyte after the dilution, also the viscosity या viscous, okay, viscous effect या viscosity. Okay, so when solution is very viscous, then also this is effect on the mobility of the ions. Okay, and when more drag means friction. Okay, so more friction, then क्या करता है, ये oppose the mobility of ion, and therefore मोबिलिटी आयन उस डिक्रीज करता है, और इसीलिए कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ओके, सो ये तीनों इफेक्ट यूज करके डिबे ने, हुकेल ने और आसागर है ना, इन 1927 में मैथमेटिकली वर्कआउट किया और इक्वेशन दिया. ओके, और वो इक्वेशन से असिमेट्रिक इफेक्ट कैन बी डिटरमाइंड एंड electrophoretic effect can determine. Okay, so which is the equation?
So lambda c, this equation is lambda c equal to lambda infinite, okay, minus 82.4 d t 1/2 eta, okay, coefficient of viscosity, then plus 8.20 into 10 raised to the power 5 upon dt 3/2, or equivalent conductance at a infinite dilution, and this term multiplied by concentration terms. This is the square root of the concentration. Okay, so this is the Debye-Hückel-Onsager equation. Okay, तो lambda c यानी क्या? Lambda c is the equivalent conductance at any concentration. C means at any concentration. Okay, so here जो हमने equivalent conductance लिया है, we can take also the molar conductance. Okay, so here we take the equivalent conductance. So this equivalent conductance is in any concentration, and this equivalent conductance at an infinite dilution. Infinite dilution means the concentration term is a zero. ऐसी स्टेज की वहां पे कॉन्सेंट्रेशन C जो है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाती है. ओके, तो वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जीरो जब आ जाती है तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ओके, तो इसमें देखो जब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन C है, ओके, तो इसको इक्वल आने के लिए ये टर्म से ये इतनी क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी. ओके, तो ये जो है क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, इतनी माइनस करनी पड़ेगी, तब वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इक्वल आएगी. ओके, इट मीन्स दैट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज लेस देन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, सपोज दैट और दिस इज फर्स्टली we see what is the D. D is the dielectric constant. D is the dielectric constant. Dielectric constant, it means that dielectric constant is the ratio of the permittivity of the substance to the permittivity at the in a air space. Okay, तो ये जो dielectric constant है वो क्या करता है, दी कैपेसिटी निकालता है. इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो रहते हैं, है ना, तो उसकी वो क्या निकालते हैं, कैपेसिटी में यानी होल्ड चार्ज होल्डिंग करने की कैपेसिटी कितनी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालता है. ओके, तो सो D इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एंड this eta is the coefficient of viscosity. Okay, and lambda c is the equivalent conductance at any concentration. Okay, कौन सी भी concentration term लो, और lambda infinite equal to equivalent conductance at a infinite dilution. Okay, dilution. Okay, and C is the concentration, Okay, so this term we can write again, lambda C equal to lambda infinite minus A plus B lambda infinite, or then this term multiply by the concentration term. Okay, तो जब ये टर्म कैलकुलेट करोगे तो वो असिमेट्रिक इफेक्ट निकालता है, एंड सेकंड टर्म डिटरमाइन द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. ओके, सो देन हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये वैल्यू और ये डिटरमाइन बाय द ग्राफिकली, वी कैन डिटरमाइन बाय द ग्राफिकली. ओके, so how can determine graphically? So here
here is the x axis and y axis. Take a y axis lambda c concentration term. Okay, on the x axis this is the concentration term. Okay, if we take the KCl solution, ठीक है, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होते जाता है. जैसे यहां पे है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ये कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में, एकदम से हायर कॉन्सेंट्रेशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो यहाँ पे रहता है. ओके, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हो तब क्या हो जाता है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है. ओके, इंक्रीज होते जा रहा है, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में था, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना. सो दिस इज द नेगेटिव टाइप ऑफ द स्लोप. ओके, अब ये ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट और माइनस ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म सी. ठीक है, सो हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिख सकते हैं, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना. सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो m हो गया ये स्लोप और x हो गया ये, इसलिए x को ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म c में ले लिया और ये जो है y में ले लिया. ठीक है, ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी स्लोप a प्लस बी, यानी कौन से भी दो पॉइंट लो, अल्टरनेट ये, है ना, तो वो स्लोप निकलेगा और स्लोप a प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट निकलेगी. ठीक है, और ये KCl लिया, एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, है ना, तो इसकी वैल्यू ऐसे आ जाती है, इससे कम आ जाती है ना. और ये जो है लैम्डा सी, लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है ना, इनफाइनाइट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिस इज द एक्स्ट्रा प्लॉटिंग एंड आप निकाल सकते हो इंटरसेप्ट. So C by lambda infinite. So from this equation we can determine like this. Okay. So this is the electrophoretic effect firstly, and after that we have discussed the Debye-Hückel-Onsager equation. ठीक है, तो ये जो है Onsager equation है और पहला electrophoretic effect है. Okay. Thank you.